Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Professor Muhammad Hassan Khan, and today we are going to start the chapter number 2 of the managerial accounting and cost control system. So in the previous chapter we just studied about all introductions and differentiate between the cost accounting, for managerial accounting, and and financial management accounting. In this chapter, in chapter number 2, we are going to discuss a lot of new things, especially the numericals and as well as a new definition related to the managerial accounting. So before wasting your time, just to move to the first slide, that is overview of financial statements. In this chapter, we're going to study about financial statements, and we just going to study deeply about introduction, components, objectives, characteristics, importance, and limitations, and moving to the next content, that is the components of income statement. An income statement divided into three types, that is manufacturing account, trading accounts, and profit and loss account. And at last but not the least, we're going to start the topic of chapter number 2. The content is components of financial position. We're going to just see the balance sheet, characteristic of balance sheet, format of balance sheet, and the last topic, that is the closing stock. These all are like small definition, which is closing stocks, outstanding expense, prepaid expenses, outstanding income received in advance, depreciation, interest on capital. So starting with the first topic, which is introduction of financial statement. So the financial statement, it's saying that a financial statement is the formal records of a company, financial activities and position. It provides a summary of a company's performance over a specific period, usually prepared for the stakeholders such as shareholders, creditors, management, and the regulatory authorities. Financial statements are crucial tools for decision making, as they offer a clear and detailed picture of a company financial health. अच्छा जी, थोड़ा सा मैं उर्दू में बात करता हूँ. तो उर्दू में बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि कंपनी की हमें एक तरीके से रिकॉर्ड जो होता है कंपनी का, हमें इसके थ्रू मालूम होता है कि कंपनी की क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उसकी क्या पोजीशन कंपनी की चल रही है. अच्छा जी, उसके साथ साथ इट प्रोवाइड अ समरी ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस. तो कंपनी की हमें परफॉर्मेंस पता चलती है ओवर स्पेसिफिक पीरियड्स, यूजुअली प्रिपेयर्ड फॉर स्टेक होल्डर. अच्छा जी, किसके लिए बनाई जाती है? स्टेक होल्डर्स सच एज शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इन सब के लिए बनाई जाती है. अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर क्रूशियल टूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग. एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक टूल है किसके लिए? एक डिसीजन मेकिंग करने के लिए. दे ऑफर अ क्लियर एंड डिटेल्ड पिक्चर ऑफ अ कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ. एक प्रॉपर हमें क्लियर पिक्चर हमें बता रही होती है कि कंपनी की क्या फाइनेंशियल हेल्थ है, पोजीशन है. इसके ज़रिए से हमें क्या डिसीजन मेकिंग लेने में आसानी होगी. एक समराइज़ कर रहा हूँ मैं इसको. स्टेक होल्डर्स और उसके क्रेडिटर्स और उसकी जो भी मैनेजमेंट है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, उनके लिए बड़ी काम की होती है. क्यों? क्योंकि बेसिकली हमने बात करी थी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो स्पेशली फॉर द एक्सटर्नल पर्पस के लिए होती है, एक्सटर्नल यूजेज के लिए होती है. और हमारे पास मैनेजरियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली हमारे पास जो इस्तेमाल होते हैं वो इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं. अच्छा जी, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेस ऑफ, हमारे पास 4 उसके कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सबसे पहला है ए, स्टेटमेंट्स ऑफ इनकम, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे. सेकंड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. थर्ड बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. फोर्थ हमारे पास है बैलेंस शीट. अब बात करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स की कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. हमारे पास है तो और भी ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन जो मेन और जो ज़्यादा फोकस जिन चीज़ों पे किए जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं. उसको थोड़ी सी कोशिश करिए इसको मैं आपको ईजिली करके इसको अंडरस्टैंड करा सकूँ. सबसे पहले बात कर रहे हैं एसेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. इसमें क्या होता है, लाइक इट टू प्रोवाइड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग of company's profitability, revenue and expense over a specific period. इसमें 3 चीज़ों के बारे में थोड़ा बात करी जाती है, लाइक असेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस में से क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है
कंपनी में क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और उसके क्या एक्सपेंसेस लग रहा है। सेकंड बात करें इवैल्यूएट फाइनेंशियल पोजीशन, पोजीशन के बारे में बात करें, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अगर टू प्रेजेंट अ स्नैपशॉट ऑफ अ कंपनीज एसेट्स, कंपनी से क्या क्या एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं एंड इक्विटी at a particular date showing what the company owns and owes, कि कंपनी के पास क्या है, लाइक डेबिट और क्रेडिट के अंदर कंपनी के पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। नंबर थर्ड बात करेंगे तो कैश फ्लो इनसाइट्स, की कंपनी के अंदर क्या क्या कैश फ्लो, कितना उसका फ्लो आ रहा है कैश का, लाइक इसमें क्या बोला कि टू इन्फॉर्म यूजर्स अबाउट द कंपनीज कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कि कंपनी के अंदर कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा कंपनी से जा रहा है। हाईलाइट इट्स लिक्विडिटी एंड एबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म्स ऑब्लिगेशंस, जो इनकी शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स की जो इनकी परफॉर्मेंस जो चीज़ें होती हैं, उनके रिकॉर्ड्स होते हैं, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस जिनके ऊपर डीलिंग सारा कुछ चल रही होती है, उनके ऊपर हमारे पास इसकी जो भी चीज़ें मीट हो सकें। फोर्थ बात करें डिसीजन मेकिंग, टू प्रोवाइड क्रिटिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स इन्वेस्टर्स, creditors and management to make informed decisions regarding investments, leading and business strategies। इसको थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में से इन शॉर्ट, इसको डिसीजन मेकिंग में इसके जो ऑब्जेक्टिव जो नंबर 4 पे बात की गई है, उसको क्रेडिटर्स के अपना जो इन्वेस्टर्स के, क्रेडिटर्स के एंड मैनेजमेंट के मेक इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स, डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होता है। फिर बात करें कंप्लायंस एंड अकाउंटेबिलिटी। कंप्लायंस लाइक हम बात कर चुके हैं पहले भी क्लास के अंदर, कंप्लायंस लाइक जो भी उनके हायर अथॉरिटीज और जो भी लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो बात कर रहा होता है। टू इंश्योर द कंपनीज इज एडहरिंग टू लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, की कंपनी को जो गवर्नमेंट की तरफ से लीगल अथॉरिटीज जो भी इनके लग रहे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोवाइडिंग अकाउंटेबिलिटी टू स्टेक होल्डर्स एंड रेगुलेटरी बॉडीज, जो उनकी सिंपल के स्टेक होल्डर्स और उनके अकाउंटेबिलिटी वाले को जो भी और जो रेगुलेटरी बॉडीज जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही है नहीं हो रही। बात कर रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन कौन से हैं, सिर्फ 4 यहाँ पे हमारे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेलिवेंसी, थर्ड सेकंड हमारे पास लायबिलिटी, नंबर थर्ड वी हैव अंडरस्टैंडेबिलिटी, नंबर फोर्थ वी हैव कंपेरेबिलिटी। ठीक, हमारे पास ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें रेलेवेंसी कोई उसके रेलेवेंट हो रहा होगा, रिलायबल होगा, अंडरस्टैंड आसानी से अंडरस्टैंड को समझा जा सकता होगा। नंबर 4 तो बात करेगा कंपेरेबिलिटी, कि उसको हम दूसरी चीज़ से कंपेयर कर सकें। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड यूजेस फॉर, इसके क्या इंपॉर्टेंस हैं और उसके यूजेस क्या हैं। तो हमारे पास सबसे 6 चीज़ें इंपॉर्टेंस टू मैनेजमेंट होती है, इंपॉर्टेंट टू क्रेडिटर्स होते हैं, इंपॉर्टेंस टू बैंकर्स, इंपॉर्टेंस टू इन्वेस्टर्स, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट्स एंड एम्प्लॉयज़। ये हमारे पास 6 चीज़ें हैं। लास्ट हमारे पास का टॉपिक कह सकते हैं कि लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों पर लिमिट हुई होती है। प्रोवाइड ओनली इन टर्म रिपोर्ट, जो सिर्फ रिपोर्ट देगी आपको इंटरनली और जो भी चीज़ के हवाले से रिपोर्ट देगी। नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आएगी, दे डोंट कैप्चर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स लाइक मैनेजमेंट के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से, ब्रांड वैल्यू और मार्केट क्रेडिटर्स के हवाले से। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये फोकस कर रही होती है हमारे पास स्टेक होल्डर्स और लाइक मैनेजमेंट के हमारे पास बेसिकली हेल्प कर रही होती है। क्रेडिटर्स हमारे जिस हमने यहाँ बात करी थी, लाइक ये हमें हेल्प आउट कहाँ कर रही होती है, लाइक इसकी थर्ड लाइन में बात कर रहे हैं, इसके शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ की यहाँ पे हमें हेल्प आउट कर रही होती है। तो ये हमें नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट्स पोजीशन, इनकम स्टेटमेंट की कौन कौन सी हमारे पास जो हमने बात करी थी, हमारे पास 3 है। कहाँ पे उसके टॉपिक नंबर 2 पे बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट की यहाँ पे हमने बात करी है। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इनकम स्टेटमेंट के हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहला कंपोनेंट है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, सेकंड ट्रेडिंग अकाउंट्स और थर्ड हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, जो हम तीनों को बारी बारी इसको हम देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसका जो न्यूमेरिकल के थ्रू उसको हम ईजिली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में बता रहे हैं कि डेफिनेशन है कि अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यूज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसकी, गुड्स की, ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, एक सिंपल स्पेसिफिक पीरियड के टाइम पे। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस टू कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए होता है एंड टू हेल्प एक्सेस द एफिशिएंसी
एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। सिंपल बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बेसिकली होता है एक हमारी कोई भी कंपनी के अंदर कोई मैन्युफैक्चर हो रही है तो उस चीज़ की उसकी जितनी भी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो आ रही होती है और उसकी जो एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए ये हमें बड़ा हेल्प आउट कर रहा होता है। अच्छा जी, अभी कुछ स्टेप्स हैं ये जो किस तरीके से एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक स्टेप्स कैलकुलेट करने के लिए होता है। ये हमारे पास टोटल यहाँ पे टोटल 10 स्टेप्स हैं, बट इसको ये हमें अंडरस्टैंड ईजिली जब होगा जब हमारे इसको न्यूमेरिकल को हम कर रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के प्रोसेस के अंदर ओपनिंग स्टॉक्स एंड रॉ मटेरियल। एक ओपनिंग स्टॉक होता है द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अच्छा, सेकंड मेन जो चीज़ है इनकी हेड जो हमारे पास लाइक हाईलाइटेड जो चीज़ें हुई उसको हमें ज़्यादा मेन फोकस करना है। ओपनिंग है हमारे पास स्टॉक रॉ मटेरियल का, फिर हमें ऐड करना होगा उसके अंदर परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, फिर हम ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर हम बात करेंगे ऐड क्या करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, फिर हम इसके अंदर लेस क्या करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। 7 में बात करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और फिर इसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेन जो हमारे पास जो मैंने हाईलाइट करा है यहाँ पे फॉर्मूला दैट इज COP विच इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें ये सारी चीज़ें बता रही है कि जिसमें लाइक हमारे पास रॉ मटेरियल ओपनिंग, लाइक रॉ मटेरियल ओपनिंग के अंदर हम ऐड करेंगे रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज इसके अंदर हमने ऐड कर दिया, रॉ मटेरियल ओपनिंग के अंदर हमने ऐड कर दिया रॉ मटेरियल परचेज। देख सकते हैं रॉ मटेरियल ओपनिंग के अंदर हमने ऐड करा रॉ मटेरियल परचेज। फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं थर्ड जिस टाइम हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस को हम ऐड कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं क्लोजिंग एक्सपेंस लेस कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ और है, एक स्टेप्स में थोड़ा सा जिसमें हम और एक और चीज़ ऐड करनी थी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो हमने यहाँ पे आई थिंक हो सकता है कि सॉरी ये लिखा हुआ इतने आगे बड़ा आगे आ रहा है। खैर ओपनिंग ये आप देख सकते हैं कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को उसने यहाँ पे ऐड करा है। तो अच्छा नेक्स्ट बात कर रहे हैं मैं यहाँ पे सेपरेट किससे होगा रॉ मटेरियल क्लोजिंग प्लस रॉ मटेरियल ओपनिंग। लुक यहाँ हमने बात करा रॉ मटेरियल लेस कर रहा है, रॉ मटेरियल क्लोज को माइनस कर रहा है और रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस कर रहा है। सिंपल आसान जो चीज़ है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारे पास 7th स्टेप हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स को सारे को आपस में रिसॉल्व होने के बाद मैंने इसको सिंपल वे में इसको मैंने इस तरीके से शो करके बता दिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें किसी भी चीज़ की अगर मालूम करनी होगी तो हमें इस फार्मूले के थ्रू मालूम करनी है विच इज़ रॉ मटेरियल ओपनिंग प्लस रॉ मटेरियल परचेजेस। फिर हम डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बात करिए, ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस की बात करिए, फिर बीच में माइनस क्या हो रहा है रॉ मटेरियल क्लोजिंग प्लस रॉ मटेरियल ओपनिंग। ये हमारे पास सिंपल सा एक स्टेप्स हैं, इनको सिंपल करेंगे हमारे पास कहाँ से निकल के आ जाएगा। अच्छा जी, फिर बोला है कि ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग प्रोडक्ट्स को हम जो भी उसका ऐड करेंगे। फिर हम बोला है कि लेस क्लोज स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS निकालने का तरीका क्या है। अच्छा COGS का फॉर्मूला क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिस थिंग जो हमारे पास निकल के आएगी उसमें हम फिनिश गुड की ओपनिंग, फिनिश गुड्स की हम यहाँ पे ओपनिंग को ऐड कर देंगे। सही है, फिनिश गुड्स की ओपनिंग यहाँ पे हो गई हमारे पास, ये वहाँ पे लिखा हुआ है फिनिश गुड्स की ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पे ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे हम क्या लेस कर देंगे जो हमारे पास फिनिश गुड्स की क्लोजिंग, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ये जो दो स्टेप्स हैं वो वहाँ पर यहाँ पे आ रहा है। सही है। अच्छा जी, कुछ शॉर्ट टर्म्स लिखी हुई है विच इज COP मीन्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, FG मीन्स फिनिश गुड्स, RM मीन्स रॉ मटेरियल, WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस। एक हमारे पास न्यूमेरिकल है प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर अहमद लिमिटेड फॉर द ईयर और एंडेड 31 दिसंबर 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा थोड़ा सा इसमें बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है, हमें क्या मालूम करना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बारे में मालूम करना है। मैन्युफैक्चरिंग इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मालूम करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मालूम करनी है, हमें COP मालूम करनी है। अब वही न्यूमेरिकल है जो पीछे स्टेप्स लिखे हुए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। लाइक रॉ मटेरियल हमारे पास ओपनिंग है भी दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं अब रॉ मटेरियल ओपनिंग, लुक रॉ मटेरियल ओपनिंग। नेक्स्ट बात करें रॉ मटेरियल परचेज मीन्स रॉ मटेरियल ओपनिंग के अंदर रॉ मटेरियल परचेज ही ऐड हो गया। सही, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया हमारे पास, वो क्या होगा हमारे पास ऐड हो गया, डेट इज 70,000।
और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस WIP मीन्स उसे कि 25,000 प्लस 1,50,000 प्लस 70,000 प्लस 30,000, ये सारों को हमने ऐड ऑन कर दिया। अच्छा, जो हम अब क्या माइनस करेंगे, रॉ मटेरियल क्लोजिंग, इन दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल क्लोजिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इन दोनों को आपस में ऐड करके लुक रॉ मटेरियल क्लोजिंग प्लस हो रहा है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल क्लोजिंग प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इन दोनों को जो 60,000 आएगा वो इन सब के सम अप से माइनस में हो जाएगा। मीन्स 150 प्लस 25 दैट इज 150 60 70 75 के अंदर हमने ऐड करा 70, मीन्स टू से लाइक 70 हमारे पास हो गया 80 90 200 1 2 3 4 145। तो ये 145 के अंदर 30 ऐड कर दिया, सॉरी 245 के अंदर हमने 30 ऐड कर दिया, तो 45 से 75, 275 में से हमने 60,000 माइनस कर दिया, तो हमारे पास लाइक 75 में 65 के हमारे पास तो कितने बचे 210 बचे हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास 210 हमारे पास का निकल के आ जाएगा, COP निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना होगा, हमें लाइक मालूम ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आ गया, सिंपल। ठीक है, इस सवाल के से इतना सा हमें मालूम करने को बोला है, फिनिश गुड्स के बारे में और किसी के बारे में बात नहीं करिए। नेक्स्ट बात करने को बोला है कि स्टेप्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द रॉ मटेरियल अवेलेबल, रॉ मटेरियल अवेलेबल हमारे पास कितना ये रहा। अच्छा, एक और, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक और न्यूमेरिकल हमारे पास आ रहा है जिसमें हमें चीज़ें मालूम करने को बोल रहा है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने को क्या बोला है हमारे पास, लाइक रॉ मटेरियल हमारे पास है, न्यूमेरिकल है, सिंपल स्टेप्स के थ्रू चीज़ें फॉलो होंगी, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप नंबर 5। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम सबसे लास्ट में ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। तो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो हम सबसे लास्ट स्टेप तक हम पहुँच सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले में क्या होगा, टोटल रॉ मटेरियल को हमें ऐड करना पड़ेगा, फिर रॉ मटेरियल को कंज्यूम उसको मालूम करना पड़ेगा, कैलकुलेट TQM जिसको बोलते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिर हमें कैलकुलेट COGS, फिर कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल देखते हैं, प्रिपेयर अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर निसान लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक निसान का जो अकाउंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, इसमें हमें क्या मालूम करना है, हमें जो मालूम करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है, दैट इज़ जो भी निकल के आएगी। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम चलेंगे तो हम इसका मालूम कर सकेंगे। हमें डेटा के अंदर चीज़ें दी हुई हैं, लाइक ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000। तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँ तो आपको ईजी समझ में आएगा। तो हमें सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, कैलकुलेट टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल। रॉ मटेरियल अवेलेबल का क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो हमारे पास 20,000 है, ये हमारे पास 20,000 है, इसमें क्या ऐड कर देंगे, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की परचेजेस को हमने ऐड कर दिया, मीन्स उसे 1,20,000 के अंदर 20,000 ऐड कर दिया, तो हमारे पास 140 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है, हमारे पास निकल के आ गया ये टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल निकल कर आ गया। सेकंड क्या है, स्टेप क्या है, कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम, कि कितना रॉ मटेरियल हमारे पास कंज्यूम हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल जो हमने स्टेप नंबर 1 से निकाला है, ये रहा यहाँ पे निकाला, जो हमारे पास 140 निकल कर आया था इन दोनों को ऐड करने के बाद। अच्छा, उसमें क्या माइनस कर दें, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, जो हमारे पास क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना हमारे पास, क्लोजिंग रॉ मटेरियल हमारे पास यहाँ पे आ गई, क्लोजिंग रॉ मटेरियल हमारे पास 15,000, मीन्स उसे 120 विच इज़ 140 में से हमारे पास 15,000 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया 10 और ये 30 125 यहाँ पे हम पहुँच गए। सही है, 125 यहाँ पे हमारे पास आ गया। अच्छा, अब क्या बात कर रहे हैं, तो हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप की बात करेंगे, कैलकुलेट टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो हमारे पास TQM जिसको हम बोलते हैं। तो TQM हमारे पास कैसे निकलेगा, TQM हमारे पास से, सॉरी हम आगे चले गए, अब हमें TQM निकालना है। TQM निकालने का फॉर्मूला हमारे पास, रॉ मटेरियल के अंदर हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स। हमारे पास रॉ मटेरियल के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट वेजेस और हमारे पास थर्ड चीज़ क्या हमारे पास, और फैक्ट्री ओवरहेड्स और रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम जो हमने ऊपर निकाला था, हमारे पास कितना निकल गया था 1, यहाँ से इसको सॉल्व करने का हमारे पास निकल के आया था 125 निकल कर आया था। सही है, 125 के अंदर हम लोग
60,000 ऐड कर देंगे 125 के अंदर 60,000 मीन्स उसे 35 45 55 65 75 85 185 हमारे पास ये हो गया। सही है। उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स के हम भी ऐड कर देंगे 65 के अंदर 30 75 85 95 195 हमारे पास यहाँ तक का आंसर आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया। डायरेक्ट वेजेस, यहाँ पर कहीं डायरेक्ट वेजेस हमारे पास है, बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस हो गया हमारे पास। फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया और रॉ मटेरियल कंज्यूम जो हम ऊपर से निकाल चुके थे 165 65 70 95 195 तक हम पहुँच चुके हैं। सही है। अब हम पहुँच चुके हैं हम अपने फोर्थ स्टेप के अंदर, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। TQM 195 तक हम पहुँच गए थे। TQM यहाँ के अंदर हम ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है मेरे पास, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अच्छा, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नीचे लिखा हुआ 40,000। सही है। अब इसको क्या करेंगे, हम 40,000 को ऐड कर देंगे। सही है। हमारे पास 95 हमारे पास वो आ गया था, 195 वो आ गया था। अब हमें कितना ऐड इसके अंदर करना है, 40,000 195 210 205 215 225 235। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस हमारे पास 220 95 105 15 25 30 135 तक हम यहाँ पहुँच चुके हैं। सही है। 135 का यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस कैसे, TMC जो हमारे पास यहाँ से निकल कर आया था 195 आया था, उसके अंदर हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिया जो हमारा 40,000, तो 135 तक हम पहुँच चुके हैं। अब लास्ट स्टेप जो बिल्कुल चल रहा है हमारे पास, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का क्या हमारे पास तरीका, नेट सेल, जो भी हमारे पास नेट सेल्स क्या जो है तरीका क्या मालूम करने का, जो हमारे पास सेल्स जो आई है उसके अंदर माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न। अच्छा, रिटर्न्स के हमारे पास दो आ रहे हैं, एक रिटर्न इनवर्ड्स आ रहे हैं और रिटर्न आउटवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है। हमारे पास रिटर्न के दो आ रहे हैं, तो रिटर्न इनवर्ड्स को हम दोनों को लाइक 4,000 प्लस 2,000 कितने होगा, 6,000 हमारे पास ये होगा। सही। 6,000 के अंदर हमने माइनस कर दी सेल्स। कितनी सेल हमारे पास दिखा रहा है, सेल 3 लाख की सेल दिखा रहा है, तो 3 लाख में से 6,000 माइनस हो गए, तो हमारे पास 294 यहाँ पे आ गए। सही है। सेल्स हमारे पास टोटल क्या आ गए यहाँ पे, नेट सेल आ गई। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कैसे निकलेगा, जो हमारे पास नेट सेल्स है उसमें से हम गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस जो हमारे पास इसका आंसर है 245 ऐसे कुछ जो हमारे पास आंसर आया था उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है। तो 2,45,000 मैं भी इसका थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूँ, इसका बताता हूँ इसको आंसर। हमारे पास जो आंसर आया था, एक सेकेंड, हमारे पास ये था, हमारे पास अभी फ़िलहाल 2,99,000 3 लाख के बाद 3 लाख में से 6,000 गए थे। सही है। तो हमारे पास 3 लाख में से जब माइनस 6,000 हुए थे तो हमारे पास 294 आए थे। सही है। हमारे पास ये नेट सेल आए थे, तो नेट सेल में से हम माइनस कर देंगे, कितनी माइनस कर देंगे, हमारे पास 245 जो ऊपर से निकल गया, तो वहाँ पर टोटल जो आंसर आ रहा है 49,000 इसका हमारे पास इसका ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर आ रहा है। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल जो था जो हमारे पास निसान लिमिटेड का था, तो जिसका आंसर 249,000 निकल के हमारे पास आ रहा है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो क्या होता है, ट्रेडिंग बेसिकली अकाउंट जो होता है तो पढ़ लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम सिर्फ से बात कर रहे होते हैं। पिछले वाले अकाउंट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बात कर रहे होते हैं, उसके जो भी ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, इसमें सिर्फ वो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के हवाले से जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उसके जो प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है, और स्पेसिफिक पीरियड किसी भी छोटे टाइम ये जितने भी लॉन्ग टर्म हो या जो भी टाइम पीरियड हो उसके हवाले से बात करते हैं। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। ये एक इंटीग्रल एक होता है लाइक ये मतलब इसका इनकम स्टेटमेंट का ही हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है, एंड इट्स पार्शियली रेलिवेंट फॉर बिजनेस इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। सिंपल लॉस एंड प्रॉफिट कैसे होगा, जब हम चीज़ों को बाइंग करेंगे या हम चीज़ों को या गुड्स को हम सेलिंग करेंगे, सच एस मैन्युफैक्चरिंग रिटेल कंपनी। जो भी मैन्युफैक्चरिंग रिटेल कंपनीज की जो भी बाइंग और सेलिंग की हो रही होगी उसकी जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर क्या है, इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। अच्छा, एक सिंपल सा फॉर्मूला एक न्यूमेरिकल है सिंपल,
लाइक हमें एक एग्जांपल दी है उसकी, जो सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट का नीचे आंसर भी दिया हुआ है। तो चीज़ें हमें दी हुई सेल्स रेवेन्यू जो हमारे पास है उसके अंदर से COGS माइनस कर दे, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। क्या माइनस का COGS, सेल्स रेवेन्यू में से 150 में से 90,000 हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट किसका निकल कर आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट का निकल कर आ गया, दैट इज 60,000। ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब एक जो मेन न्यूमेरिकल है उसके हमारे पास 6 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। जिस तरीके से हमारे पास ये पिछले सवाल के अंदर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर, इसी तरीके से हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट का जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर हमारे पास टोटल 6 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो 6 स्टेप्स को हम सिंपल जिस तरीके से हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल को सॉल्व करा था, अब इसी न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व करेंगे पिछले स्टेप बाय स्टेप के थ्रू। सी एक न्यूमेरिकल है लाइक प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक हमें एक डेटा दे दिया, ये इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना है और जो मालूम करना है उसका क्या मालूम करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेप नंबर 6 तक जाना है, जो हमें कैलकुलेट करने को बोला ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर वेजेस और ग्रॉस प्रॉफिट माइनस वेजेस जो भी होगा। तो हम बात करते हैं स्टेप्स 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले डेटा में देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 40,000, परचेजेस दी हुई है 175, सेल्स दी हुई है 3,03,000, रिटर्न इनवर्स दिए हुए हैं 3,000, रिटर्न आउटवर्ड्स दिए हुए हैं 5,000, वेजेस दी हुई है 30,000, कैरेज इनवर्स दिए हुए हैं 5,000, क्लोजिंग स्टॉक विच इज़ 65,000। अच्छा जी, तो हम देखते हैं सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के अंदर कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। हमें सबसे पहले क्या मालूम करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्या फॉर्मूला है भाई, ओपनिंग स्टॉक्स प्लस परचेजेस। सिंपल, ओपनिंग स्टॉक्स प्लस परचेजेस मीन 1,75,000 के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करा, हमने ऐड करा 1,75,000 के अंदर किसको ऐड कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 40,000 जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। तो इसका सिंपल सा जो इसका आंसर आ रहा है 2,15,000। 175 के अंदर 40,000 हमने ऐड करा तो 2 हमारे पास आ रहा है 215 आवर्स काम से निकल के आ रहा है। अच्छा, हमारे पास क्या निकला, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ये निकल कर आ गया। सेकंड से बात कर रहे हैं कैलकुलेट द नेट सेल्स ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। अब टोटल की बात कर रहे थे, अब नेट सेल की जो अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास है, तो क्या चीज़ हमारे पास, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो हमने ऊपर निकाला था, यहाँ पर जो ये निकाला उसके अंदर से माइनस क्या कर देंगे, रिटर्न आउटवर्ड्स हम इसके अंदर से माइनस कर देंगे। रिटर्न आउटवर्ड्स कितना हमारे पास 5,000। तो हमारे पास जो लास्ट टाइम जिसका आंसर आया था, तो उसको अंदर से हम सिंपल क्या माइनस कर देंगे, 5,000 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसके आंसर में से। जो 215 हमारे पास आंसर था उसके अंदर हम सिंपल 5,000 माइनस कर दिया, 2,15,000 के अंदर से माइनस कर दिया 5,000। सही है, तो हमारे पास आंसर 2,10,000 आज क्या आंसर आ गया। सही है, रिटर्न आउटपुट्स को हमने माइनस कर दिया। थर्ड स्टेप बात करें कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ गुड परचेज। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड परचेज का फॉर्मूला क्या हमारे पास, नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल प्लस कैरेज इनवर्ड्स। ठीक है भाई, कैरेज इनवर्ड्स हमारे पास क्या है भाई, कैरेज इनवर्ड्स यहाँ पे हमारे पास आ गया। जो हम लास्ट एक स्टेप को फॉलो करेंगे, नेट सेल जो हम ऊपर हमने निकाला है उसके अंदर हम ऐड कर दें कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स हमारे पास 3,000। अब जो हमारे पास 210 जो हमारे पास आंसर आया था उसके अंदर हम लोग कैरेज इनवर्ड्स कर देंगे, जो लाइक हमारे पास कहाँ गया हमारे पास आंसर, ये आ गया। अच्छा जी, इसके अंदर हम लोग जो 2,10,000 हमारा बचा था, प्लस हम कर देंगे इसके अंदर 3,000 हम इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। सही है, कैरेज इनवर्ड्स हमने ऐड कर दिया, तो 2,13,000 हमारे पास इसका आंसर आ गया। कैरेज इनवर्ड्स भी हमने ऐड हो गया। अच्छा जी, अब बात कर रहे हैं फोर्थ स्टेप कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। COGS का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परचेज, एस वाले के अंदर से माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा जी, जो वहाँ पर आंसर निकल गया है हमारे पास, लास्ट टाइम जो भी आंसर है 230 निकल गया इसका आंसर, उसके अंदर माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक सबसे लास्ट में हमारे पास 65,000 दिया हुआ है। सही है, माइनस कर देंगे हम लोग 65,000, तो 1,48,000 निकल के हमारे पास ये आ गया। सही है, 1,48,000 निकल के आ गया। सही है, अब हम पहुंच चुके हैं कैलकुलेट स्टेप नंबर 5 तक, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट।
ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स हमारे पास 3000 है, सेल कितनी है 3,03,000, हमने रिटर्न इनवर्ड्स माइनस कर दिया 3,03,000 में से 3000 माइनस कर दिया तो हमारे पास टोटल 3 लाख हमारे पास का आंसर आ गया। ठीक है, इसका रिटर्न इनवर्ड्स का आ गया हमारा आंसर। अब क्या मालूम करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। जो नेट सेल अभी हमने ऊपर निकाली है उसके अंदर COGH हमारे पास इसको आया, उसको माइनस कर देंगे। COGH हमारे पास कितना हमारे पास था 148 पीछे बचा हुआ था, और इस पे सेल्स कितने 3 लाख की आई थी हमारे पास, इसमें से 3 लाख हम माइनस कर देंगे। 3 लाख में से हमने COGS मालूम माइनस कर दिया तो हमारे पास तो 1,52,000 हमारे पास CS का अभी तक हम पहुंच गए 1,52,000। सही है, 1,52,000 में यहाँ पहुंच गए। अच्छा जी, अब बात कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर वेजेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर वेजेस की मैंने क्या, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हमारे पास निकल कर आया ऊपर 1,52,000। वेजेस के अंदर जो इसकी वेजेस होगी माइनस कर देंगे उसकी सैलरीज को, माइनस कर दिया हमने उसकी सैलरीज को, हम उसको माइनस कर देंगे। जो 30,000 इसकी सैलरीज है हमने उसको माइनस कर दिया तो 1,22,000 इसका आंसर निकल कर आ गया, विच इज़ ट्रेडिंग अकाउंट का हमारे पास न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या हमारे पास बात कर रहा होता है, इनकम स्टेटमेंट और जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द की फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड अ समरी ऑफ अ कंपनीज रेवेन्यू, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। इन 3 चीज़ों के वजह से हम ज़्यादा बात करें ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड यूजिंग द क्वार्टर और अ ईयर। क्वार्टर में हवाले से या उसके आधे मतलब साल के आधा या साल पे हमें उसके बताता ज़्यादातर। इट रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी एंड हेल्प स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड मैनेजमेंट अंडरस्टैंड हाउ मच प्रॉफिट और लॉस द बिजनेस हैज़ मेड ओवर द पीरियड। तो ये कितना है उसको बिजनेस को प्रॉफिट और लॉस हुआ है एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान। ये इसके हमारे पास सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, नेट सेल्स। तो नेट सेल्स मालूम करने का तरीका है सेल्स में से माइनस कर देंगे रिटर्न इनवर्ड्स, फिर उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे, फिर हम कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर सैलरीज रेंट्स और यूटिलिटीज का आपस में जो भी हम ऐड ऑन कर देंगे। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को किस तरीके से करेंगे, जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारे पास ऊपर से फर्स्ट स्टेप में से निकल के आया था उसमें से माइनस कर देंगे, ये टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दें, फिर हम कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जो हमें आएगा उसको मालूम करना होगा। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमारे जो ऊपर आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को प्लस टोटल नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सिंपल सा न्यूमेरिकल हमारे पास प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर लकी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर फ्रॉम 24 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है छोटा सा, जिसपे सिर्फ और सिर्फ पुटिंग द वैल्यूज एंड गेटिंग द आंसर स्टेप्स को फॉलो करो, उसको आंसर के अंदर डालो और न्यूमेरिक फॉर्मूलाज के अंदर डालो और न्यूमेरिकल के आंसर निकलो। सही, सबसे लगे दिया हुआ हमें सेल्स दी हुई है और रिटर्न इनवर्ड्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस टाइप से सबसे लगे मालूम करना है नेट सेल। नेट सेल का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड्स, सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड्स। 5 लाख में से हमें जो माइनस करना है 10,000, 5 लाख में से हमने माइनस कितना करा, माइनस 10,000, तो हमारे पास कितना निकल कर आ गया, 490 निकल गया हमारे पास यहाँ पर आ गई। सही, 490 अभी तक हमारे पास क्या निकल कर आई, हमारे पास ये नेट सेल निकल कर। अभी हमें क्या मालूम करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल में से माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हमें वैल्यू दी हुई है, इसी के अंदर जो हमें निकल कर आया था नेट सेल्स के अंदर से माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,50,000, ये हमारे पास अब तक का जो आंसर आया है 2,40,000 अब तक का हमारे पास आंसर आ गया। सही है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आया 2,40,000। स्टेप नंबर 2 पे पहुंचे, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अच्छा अब तक दिमाग में रखना 2,40,000 हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे, सैलरीज रेंट्स यूटिलिटीज़ और मिसलिनियस जो भी होंगे इन सबको आपस में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सैलरीज रेंट यूटिलिटीज़ मिसलिनियस को हम सबको आपस में ऐड कर देंगे। 75 के अंदर 20,000 ऐड करा, 85,95 ये और 15,095 100 110 और 120 हमारे पास ये सारा कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास आ चुका है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया कितना, 120 आ गया। सही है, तो दोबारा देखिए 75 के अंदर 20,000 हमने ऐड करा, 85,95 सही है, और 15,000 ऐड करा 95 100 और 110 और 110 के अंदर 10 ऐड करा था 120 हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया हमारे पास। मीन्स से ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकल कर आ गया सबको ऐड करने के बाद।
अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे तो हमारे पास ऊपर जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, यहाँ पे कितना आता है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आई थी विच इज़ जो हमारे पास आई थी 240 आई थी आई थिंक 2,40,000, बिल्कुल 2,40,000 के अंदर हम क्या करेंगे इसको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अभी जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग हमारे कितनी आई थी 2,20,000 हमारे आई थी। तो अब तक हमारा जो बचा है 20,000 उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। अब लास्ट टाइम है कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का क्या तरीका है भाई, नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस TQM। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकल गया आपके पास 20,000 प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास दो इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आ गई 5,000 8,000 प्लस कर लेंगे 5,000 प्लस 8,000, ये हमारे पास टोटल इसका आंसर है 33,000 इसका हमारे पास निकल के आंसर आ रहा है। ठीक है, हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का भी न्यूमेरिकल हो गया, इससे पहले हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट का भी न्यूमेरिकल था और उससे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का न्यूमेरिकल था। सिंपल से न्यूमेरिकल्स है, पुटिंग द वैल्यूज एंड गेटिंग द आंसर्स। अच्छा, अबाउट टॉपिक हमारे पास है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर क्या चीज़ें हमें देखनी है, बैलेंस शीट के अंदर भी हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें पढ़ते हैं। बैलेंस शीट बेसिकली होती है फंडामेंटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, यूज्ड टू शो द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ अ कंपनी। कंपनी की पोजीशन बताती है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ टाइम, कोई भी पॉइंट पे कंपनी की जो भी क्या उसकी पोजीशन है और ये कंपनी की से वो हमें बता रही होती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट प्रोवाइड्स द कंपनी ओन्स एस मीन्स की जो कंपनी के पास जो एसेट्स हैं ओन्स खुद रख रही है और ओज मीन जो उसकी लायबिलिटीज को पे ऑफ करनी है एंड द स्टेक होल्डर्स इक्विटी, जो स्टेक होल्डर्स की इक्विटी है उसको बता रही होती है एट द मोमेंट उस टाइम पे। एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं और शेयर होल्डर्स क्या होती है। हमारे पास छोटा सा डिफाइंड करा हुआ एसेट्स के हमारे पास कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा, नॉन हमारे पास करंट एसेट होते हैं, हमारे पास नॉन करंट एसेट होते हैं जिसको हम फिक्स लॉन्ग टर्म एसेट बोल रहे होते हैं। फिर लाइबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, करंट नॉन लाइबिलिटीज़ होती थी। शेयर होल्डर्स इक्विटी जिसको बोलते हैं और इसका नाम दूसरा ओनर्स इक्विटी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, फिर एक फॉर्मूला है बैलेंस शीट का हमारे पास, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी या ओनर्स इक्विटी हमारा फॉर्मूला है। एक न्यूमेरिकल है आगे हमारे पास, राइट द बैलेंस शीट फॉर द कंपनी JP Morgan बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसका एक न्यूमेरिकल है। एक ये इस टाइप्स को हम फॉलो करेंगे तो हम इसका आंसर को ईजिली निकाल सकते हैं। सिंपल कैश दिया हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री दी हुई है। स्टेप 1 को फॉलो करते हैं। तो स्टेप 1 में हमें बोला है कि टोटल एसेट्स के हवाले से बात करेंगे। तो टोटल एसेट के अंदर हमारे पास आ गया, कैश के अंदर ऐड कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री प्लस ऑफिस इक्विपमेंट, हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। कैश को ऐड कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल को ऐड कर देंगे, इन्वेंट्री को ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा हमारे पास, और ऑफिस इक्विपमेंट लाइक अगर हम ऐड कर दें 12,000 प्लस 6,000 कितने हो गए 18,000 के अंदर ऐड कर दिया हमने 8,000 मीन्स तो कितने हो गए 26,000 में हमने 10 ऐड कर दिया 36,000। ये हमारे पास हमारे पास क्या निकल गया, टोटल एसेट्स निकल कर आ गए। सही है, 26,000 हमारे पास, सॉरी 12 6 18 प्लस 5 लाइक 12 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 10 टोटल तो 36,000 निकल के हमारे पास ये आ गया हमारे पास टोटल एसेट्स हमारे पास आ गया। अब बात कर रहे हैं लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़। टोटल लाइबिलिटीज इक्वल्स टू अकाउंट पेएबल प्लस लोन पेएबल। अकाउंट पेएबल क्या हमारे पास, अकाउंट पेएबल न्यूमेरिकल कहाँ गया हमारे पास, हम थोड़ा सा पीछे चले गए, ये लिस्ट सॉरी कहाँ पहुँच गए हम लोग, इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा जी, सॉरी ये न्यूमेरिकल जी आई थिंक ऊपर नीचे हो गया ये थोड़ा सा, ना कहाँ चले गया मैं थोड़ा गलत चला गया, सॉरी ये रहा, सॉरी। अभी तक मेरे पास हो गया 36,000, मेरे पास ये निकल के आ गया, इसके एसेट्स निकल कर आ गए। अब लाइबिलिटीज़ की बात करूँगा। लाइबिलिटीज़ के लिए मेरे पास क्या क्या है, लाइबिलिटीज़ में अकाउंट्स पेएबल प्लस लोन पेएबल। हमारे पास यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल प्लस
लोन पे, उन दोनों का आपस में ऐड कर दूंगा। 9000 प्लस 7000 कितना मेरे पास 9 और 16000 मेरे पास हो गया। सही है, 16000 लाइब्रेरीज निकल के आ गया मेरे पास। अब लास्ट बात करूँगा मैं, दैट इज़ लिस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी का क्या है भाई, टोटल इक्विटी कॉमन स्टॉक प्लस रिटेन अर्निंग, कॉमन स्टॉक प्लस रिटेन अर्निंग 12000 प्लस 8000। सही है, इन सबको फिर इस फॉर्मूले पुट करूँगा, एसेट्स लाइब्रेरीज प्लस इक्विटी, ये निकल के मेरा आंसर आ जाएगा। जो इसका एसेट्स क्या आता है वो 30,000, बाकी इन सबका भी यहाँ से निकल के सेम आएगा मेरे पास। सही है। अच्छा, अब ये लास्ट टॉपिक हमारे पास है ट्रीटमेंट्स ऑफ एडजस्टमेंट। ये कुछ चीज़ें हैं, डेफिनेशन है और सिंपल इसके फॉर्मूलाज उसके न्यूमेरिकल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। कुछ चीज़ें हैं तो बस देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है हमारे पास, नोन एज एंडिंग इन्वेंट्री, रेफर टू द गुड्स और मटेरियल रिमेनिंग इन द कंपनीज इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड्स। क्लोजिंग के टाइम पे जो एंड में रह जाती है इन्वेंट्री, क्लोजिंग के दौरान पे वो कहलाते हैं हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री जिसका दूसरा नाम भी होता है। फॉर्मूला क्या, क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या, ओपनिंग, जो भी इसका ओपनिंग के अंदर ऐड कर देंगे परचेजेस, जितनी परचेजेस हुई है माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इतना गुड्स सोल्ड माइनस हो चुका है, उसमें बस क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा हमारे पास। छोटा सा न्यूमेरिकल है, सिंपल देख लीजिएगा, पुट करके इसका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आल्सो नोन एज accrued expenses represent cost incurred but not yet paid or involved in or invoiced or off as accounting period end. Like outstanding expenses वो होते हैं जो हमें अभी तक पे नहीं कर रहे, तो that's known as simple outstanding expenses. सही, सही, but not paid or invoiced as a accounting period एंड उसके अकाउंटिंग के मतलब उसके जो पीरियड ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा, उसकी जो भी क्रेडिट लिमिट ख़त्म होगी तो उसके बाद हम पे करेंगे, ये कहलाते हैं हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस इसका उलट है, हमने पहले से पेमेंट कर दी हो किसी भी सर्विस की और किसी भी जो भी हमने सर्विस ली हो या जो हम चीज़ें पर गुड्स परचेज करें, इन्वेंट्री स्टॉक पर रॉ मटेरियल परचेज कराओ, उसकी हम पहले से पेमेंट कर दें, दैट्स कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग इनकम थोड़ा सा ऑलमोस्ट देखते हैं भी। आउटस्टैंडिंग इनकम ऑल्सो नोन एज अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव रिप्रेजेंट अर्निंग दैट हैव बीन अर्न बट नॉट रिसीव्ड और इनवॉइस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब कि थोड़ा सा ये ऑलमोस्ट सेम है। इनवॉइस रिसीवेबल, जो हमें इनवॉइस मिल गई है बट नॉट रिसीव्ड, अर्न बट नॉट येट रिसीव, हमें उसकी अर्निंग मिल गई है, लाइक हमें उसका चेक मिल गया। एक मिसाल है कि हमें एक कंपनी की तरफ से चेक मिल गया बट उसके पेमेंट हमें रिसीव नहीं हो, कुछ दिनों के बाद उसने आगे की डेट डाल दी हो, तो दैट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इनकम। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करें डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वापस लाइक वो होती है, डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द एसेट्स कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ रिफ्लेक्टिंग द डिक्रीज इन इट्स वैल्यू ड्यू टू द वेयर एंड टेयर ऑफ क्लियरेंस और अदर फैक्टर्स। किसी भी चीज़ की वजह से उसके कुछ टाइम के बाद उसकी वैल्यू गिरना, जो उसकी डेप्रिशिएट होना कुछ टाइम पीरियड के बाद, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसके नीचे न्यूमेरिकल है, उसका फॉर्मूला है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, लास्ट टॉपिक था हमारे पास डेप्रिसिएशन और इस चैप्टर के अंदर हमने जितनी चीज़ें थी कवर कर ली और इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव करेंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। जो इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं वो आप एक दफ़ा और देख लीजिएगा। इसके मैं आपको जो भी न्यूमेरिकल्स का सॉल्व है वो भी इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा, तो स्टे कनेक्ट विद मी। और इसको अगर कुछ समझ में ना हो तो मुझे कमेंट करके मुझे बता दें कि क्या चीज़ें आपको समझ में ना आई हो, और जो चीज़ें पूछनी हो तो मुझे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। जज़ाकल्लाह।